Hello everyone, how are you all? I hope all you are doing absolutely fine. Chemistry with Karuna Sharma back again. Today's this session or this class is very special for 10th class students. We will learn today effect of oxidation reaction in everyday life. But we will discuss this topic in question form. Okay friends, let's start journey. Stay with me till end. Let's see. उससे पहले what you have to do, all new students, please subscribe right now so that every time I come up with all of you, learn more and more from my channel. Okay, let's start. Effects of oxidation reaction in everyday life. First is corrosion and second is rancidity. We will discuss these both terms in question form. First question, what is rust? Rust क्या होता है? Rust is hydrated iron oxide that is Fe2O3.XH2O. Means question इस फॉर्म में भी पूछा जाता है. What is the chemical formula of rust? Then you have to check Fe2O3.XH2O is the correct chemical formula of rust. Second question, state essential requirement for rusting. First essential requirement for rusting is open surface of water. Second is presence of moisture. And third is presence of air. These three are most important or most essential requirement for a particular metal to rust. Now third question is, what do you mean by rusting? Means rusting process क्या होती है? When iron articles are coated with reddish brown substances called rust. जैसा आपने देखा होगा कि आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको जब आप बाहर रख देते हैं तो उस पर क्या आपके पास एक ब्राउनी लेयर सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है. उस ब्राउनी लेयर रेडिश ब्राउन सरफेस को बोलते हैं हम, दैट इज रस्ट. इन प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ रस्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कोटेड विद रेडिश ब्राउन सब्सटेंस व्हेन केप्ट लेफ्ट फॉर सम टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. यू कैन सी क्लियरली हेयर rusting of iron. Okay, fourth question is write equation for rust. Rust के लिए आपको equation write down करनी है. Fe when comes in contact with air and in presence of water vapor, formation of rust Fe2O3.XH2O means hydrated. What is corrosion? Corrosion क्या होता है? This slow process in which conversion of metals into their undesirable compounds means एक particular metal जो होती है वो undesirable compound में convert होती है. कब कब होती है? By air components. जब वो air components जैसे oxygen, moisture और other gases के contact में आती है. That slow process is termed as corrosion. Next question is why a layer of oil is used on tools rather than paints. आप देखते हैं कि घर के दरवाजे वगैरह हैं, आप जहाँ पे कहीं भी ऑयलिंग करनी होती है तो आप पेंट ना करके आप टूल्स पे ज़्यादातर ऑयल यूज़ करते हैं. ऑयल क्या करता है? आयरन को रस्टिंग होने से बचाता है. अ लेयर ऑफ ऑयल इज स्प्रेड ऑन टूल्स रादर देन पेंट्स बिकॉज पेंट्स आर इजीली चिप्ड एंड ऑयल लेयर प्रिवेंट्स देयर सरफेस टू कम्स इनटू कॉन्टैक्ट ऑफ एयर. मीन्स जो ऑयली लेयर होती है वो एयर के कॉन्टैक्ट में कम आती है और पर्टिकुलर टूल को जंग लगने से बचाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग. आपको मेथड डिस्कस करने हैं जिससे आप रस्टिंग से बचाव कर सकें. फर्स्ट मेथड इज पेंट द मेटेलिक सरफेस. उस पर्टिकुलर सरफेस को आपको मेटेलिक सरफेस को पेंट कर देना है. सेकेंड इज ग्रीसिंग और ऑयलिंग द मेटल. जैसे बाईसाइकिल चेन्स वगैरह हैं, जब आप बाईसाइकिल को काफ़ी टाइम तक बाहर खड़े रखते हैं तो then it will comes in contact with air and moisture. After some time rusting starts. Same here for nut bolts. Third one is galvanizing. This is very important term according to exam point of view. In NTSC as well as in Olympiad exam, this question is asked in the MCQ form. What is galvanization? Coating an iron object by thin layer of zinc. मीन्स एक किसी आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप कोटिंग कर देते हैं, किससे? जिंक से. जिंक क्या करता है? जिंक स्टॉप्स ऑक्सीजन एंड वाटर रीचिंग द मेटल अंडरनीथ. मीन्स जिस मेटल के ऊपर आपने जिंक की कोटिंग की है तो वो उस पर्टिकुलर मेटल को वाटर और ऑक्सीजन से बचा के रखता है. दिस इज डन बाय जिंक. मीन्स जिंक के द्वारा ये किया जाता है.
एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इट विल ऑक्सीडाइज इन दी प्रेफरेंस टू दी आयरन ऑब्जेक्ट, मीन्स जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन, दैट्स वाई इट ऑक्सीडाइजेज इन प्रेजेंस ऑफ एयर फास्टली एज कम्पेयर टू आयरन. जिंक क्या करता है, जिंक फॉर्म्स अ यूनिवर्सल लेयर, जिंक उस पर्टिकुलर जो आयरन ऑब्जेक्ट होती है उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, किसकी, जिंक ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, और वो पर्टिकुलर लेयर दैट विल प्रिवेंट्स द पर्टिकुलर मेटल फ्रॉम कोरोजन. ओके, दैट्स ऑल अबाउट द कोरोजन. ये कोरोजन के बारे में मैंने आपको बताया. रस्ट क्या होता है, कोरोजन क्या होता है. कोरोजन, किसी भी मेटल को आपको कोरोड होने से बचाना है तो आपको क्या करना है, गैल्वेनाइजेशन करना है. ओके, मूव टू नेक्स्ट टर्म दैट इज रेंसिडिटी. First we see what is rancidity. Rancid comes from the Latin word that is ranidus, which meaning having an unpleasant smell or taste. Food containing oil when kept for a long time undergoes oxidation. Means जब भी आप ऑयली फूड को काफ़ी लंबे टाइम तक रखते हैं, जैसे आप फास्ट फूड वगैरह मार्केट से लेके आते हैं तो थोड़े लंबे टाइम तक जब आप उनको रखते हैं तो उनमें एक बैड स्मेल हो जाती है, दैट इज अनप्लीजेंट स्मेल, और उनका टेस्ट भी बदल जाता है. ब्रेड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. ऑक्सीडाइज्ड फूड इज कॉल्ड रेंसिड. तो पर्टिकुलर फूड जो कि अनप्लीजेंट स्मेल करता है दैट इज टर्म्ड एज रेंसिड एंड प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी. नाउ वी विल डिस्कस मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी. वो मेथड्स डिस्कस करना चाहेंगे जिससे आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं. चलिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप खाना जो हम बनाते हैं तो उसको लंबे टाइम तक स्टोर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट जो अपना है स्टेप, किसी भी पर्टिकुलर फूड मटेरियल को आपको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है. यू हैव टू ऐड एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को लंबे टाइम तक, मीन्स उसको पर्टिकुलर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता. तो अपने पास यहाँ पे 2 कॉमन सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून. सेकेंड इज नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट दैट इज पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनोइड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, कॉमन नेम ऑफ विटामिन C एंड कॉमन नेम ऑफ विटामिन E टोकोफेरोल. Next one is what are the advantages and disadvantages of natural and synthetic antioxidant. यहाँ मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है कि सिंथेटिक और नेचुरल जो एंटीऑक्सीडेंट हैं उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस. इनएक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े, वाइडली अप्लाइड होते हैं, यूज रिस्ट्रिक्टेड, सम पे कुछ पे बैन भी है. यहाँ पे इंक्रीज करते हैं सेफ्टी कंसर्न को, ये प्रिसिव्ड एज इनॉक्सिनन, use banned for some time, low water solubility, decreasing interest and increasing interest. Second method for overcome of rancidity is keeping food in refrigerator. Means रेफ्रिजरेटर क्या करता है, पर्टिकुलर जो अपना फैटी ऑयल वगैरह होता है उसके टेम्परेचर को लो कर देता है और खाने को ऑक्सीडेशन से बचाता है. मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल स्लो डाउन ड्यू टू टेम्परेचर. रेंसिडिटी इज रिटार्डेड, रिटार्डेड होता है कम करना, रेंसिडिटी है वो कम हो जाती है टाइम के साथ. थर्ड वन इज वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम मीन्स क्या होता है, जहाँ पे एयर नहीं होती. मीन्स द फूड विच आर पैक्ड इन कंटेनर्स, कंटेनर्स में जो फूड पैक किए जाते हैं, विच एयर हैव बीन रिमूव्ड बिफोर पैकिंग, वहाँ से एयर को निकाल देना, दैट इज टर्म्ड एज वैक्यूम पैकिंग. एज एयर इज नॉट अवेलेबल, अगर एयर नहीं होगी तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर फूड आइटम है ऑक्सीडाइज नहीं होगा. मीन्स जो ऑयली फूड है आपका that does not become rancid, वो rancid नहीं होगा. Next is very important, by packing fat and oil containing food with nitrogen gas. जो पर्टिकुलर फूड और ऑयल आपको रेंसिड होने से बचाना है, आपको उसको फिलिंग करनी है विद नाइट्रोजन गैस. आई विल डिस्कस व्हाई नाइट्रोजन गैस इज टेकन हियर. नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव गैस, नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होती है. इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन से बचाती है, फूड मटेरियल को ऑक्सीडेशन होने से बचाती है. व्हेन पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस से पैकिंग की जाती है, इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम रेंसिडिटी. जैसे आप चिप्स वगैरह के पैकेट लेते हैं, फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स आर कंटेन्ड विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. नेक्स्ट वन इज बाय स्टोर फूड अवे फ्रॉम लाइट. लाइट से आपको स्टोर
करके आपको अवेयर रखना है किसको, फूड को। इन एब्सेंस ऑफ लाइट ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज स्लो डाउन। एब्सेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है और रेंसिडिटी है वो रिटार्ड कर जाती है। ओके, क्वेश्चन फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, सीबीएसई में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो till end, then answer of this question is also in notes form. A shiny brown colored element acts on heating, becomes black in color. Name the element and black colored compound formed. You have to see this question very carefully. Copper when treated with oxygen, formation of copper oxide, and that is black in color. X will be your copper and that particular black color compound is copper oxide. Okay friends, in our next video I will be with you CBSE question papers regarding chapter 1st of class 10th. Okay, stay connected. Thank you for watching my video. Do share, subscribe and comment. Thank you very much.